क्या एक लिटरेरी वर्क के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं या सिर्फ एक ही करेक्ट इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है? विलियम एम्स सिंगुलर व्यू के सपोर्ट में एक आर्गूमेंट पेश करता है और कहता है, देयर इज़ वन मीनिंग फॉर एवरी प्लेस इन स्क्रिप्चर, otherwise the meaning of scripture would not only be unclear and uncertain, but there would be no meaning at all, for anything which does not mean one thing surely means nothing. इस व्यू को सिंगुलर मीनिंग व्यू कहा जाता है, जिस पे काफ़ी फ़िलासफ़र्स, काफ़ी थियोलॉजियंस ने बात की है. फॉर एग्जांपल वॉल्टर केसर एंड डेविड नॉविट्स. नॉविट्स आर्ग्यू करता है फॉर द सिंगुलर मीनिंग व्यू बेस्ड ऑन व्हाट ही कॉल्स द सिंगुलैरिटी कंस्ट्रेंट. इस कंस्ट्रेंट के मुताबिक किसी भी गिवन टाइम में देर इज़ ओनली वन वे दैट द वर्ल्ड कैन बी. देर इज़ ओनली वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो एक ऑब्जेक्ट या फिर द वर्ल्ड एट लार्ज पोजेस कर सकती है. देर आर नॉट मल्टीपल सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, स्पेशली कॉन्ट्रडिक्टरी वंस, जो ये ऑब्जेक्ट पोजेस करेगा. नोविट्स इस बारे में कहता है, देर इज़ एंड कैन ओनली बी वन ट्रू इंटरप्रिटेशन. दिस इज़ एन इंडिस्पेंसिबल assumption of rational inquiry. The aim of elucidatory interpretation is to secure an adequate understanding of whatever it is that confuses or puzzles us. An understanding will be adequate if and only if it enables one to negotiate the world successfully, where this includes both its natural and cultural objects, events, relations, and states of affairs. Since it is reasonable to assume that there is only one way in which the world and its objects can be at any one time, one normally concedes that one has not finally understood an object or state of affairs if one also recognizes that the object of state of affairs is amenable to two conflicting interpretations. Interpretations that impute different and exclusive properties to the phenomenon in question. For if there is only one way that the world is at any one time, one shape to an object, one set of semantic properties to a text, or one set of pictorial properties to a painting, this suggests that an adequate understanding has not been reached, that there is work to be done and a convergence to be sought. Given the singularity constraint, one and the same person will not consider herself to have understood, so long as she subscribes to and cannot decide between two interpretations that are recognized by her to conflict with each other. नोविट्स के मुताबिक रैशनल इंक्वायरी टेक्स प्लेस जब एक इंक्वायरर सक्सेसफुली निगोशिएट करता है विद द वर्ल्ड, where this includes both its natural and cultural objects, events, relations, and states of affairs. वो क्लेम करता है कि रैशनल इंक्वायरी तभी पॉसिबल है जब सिर्फ एक सिंगल करेक्ट इंटरप्रिटेशन हो. इसका आर्गुमेंट प्रेमिस बाय प्रेमिस कुछ यूँ है, वी हैव एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्क इफ़ एंड ओनली इफ़ वी हैव रैशनल इंक्वायरी. There is only one way the world can be at any one time. If there is only one way the world can be at any one time, then if there are conflicting interpretations, then one does not have an adequate understanding. Hence, if there is to be rational inquiry, there can only be one true interpretation. First premise से शुरू करते हुए he says, we have adequate understanding of a work if and only if we have rational inquiry. यहाँ पे नोविट्स कहता है कि adequacy कनेक्टेड है रैशनैलिटी के साथ. एंड टू बी रैशनल का मतलब ये है कि आपके जो बिलीव्स हैं इस दुनिया के बारे में, आप उनको मैनेज करते हो अपॉन सम बेसिस, एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि यू हैव बिलीव्स एंड यू हैव रीजंस फॉर दोज बिलीव्स एंड यू हैव एक्सप्लेनेशंस फॉर द रीजंस फॉर योर बिलीव्स. एंड एनी टाइम जब आप अंडरस्टैंडिंग सीख करते हो, यू ओनली डू सो इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके बिलीव्स के पीछे कुछ रीजंस हैं या फिर यू हैव एक्सप्लेनेशंस फॉर दोज रीजंस फॉर योर बिलीव्स. सेकेंड प्रेमिस में नोविट्स सिंगुलैरिटी कंस्ट्रेंट की बात करता है और कहता है, देयर इज़ ओनली वन वे द वर्ल्ड कैन बी एट एनी वन टाइम. ये सिंगुलैरिटी कंस्ट्रेंट इम्प्लाई करता है कि कोई भी लिटरेरी वर्क कंस्टिट्यूटेड होता है बाय वन डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ एट एनी गिवन टाइम. जो भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ एक ही सेट है, नॉट मल्टीपल सेट्स ऑफ कन्फ्लिक्टिंग प्रॉपर्टीज़. इस प्रेमिस से ये बात फॉलो करती है कि एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग की नेसेसरी कंडीशन है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिंगल करेक्ट इंटरप्रिटेशन. यानी अगर मैं एक किताब पढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस किताब की मेरी नज़र में दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, ए और बी, और ए और बी दोनों से मुख्तलिफ हैं इन द सेंस कि इनकी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. कुछ बातें जो ए व्यू के अंदर इंस्टिल्ड हैं वो शायद बी में ट्रू ना हो. तो इन दैट केस आई कैन नॉट से दैट आई हैव एडिक्वेटली अंडरस्टूड दैट वर्क इफ़ मैं दो इंटरप्रिटेशंस को राइटफुली वेटेज दे रहा हूँ कि इनमें से कोई भी सही हो सकती है. थर्ड प्रेमिस कहता है, इफ़ देयर इज़ ओनली वन वे
the world can be at any one time, then if there are conflicting interpretations, then one does not have an adequate understanding. अगर तो premise 1 true है तो it follows कि rational inquiry की जो necessary condition है वो ये है कि works have one single correct interpretation. Conclusion ये कहता है कि hence if there is to be rational inquiry there can only be one true interpretation. अब इस conclusion को avoid करने के दो तरीके हैं. One might deny that the necessary condition for the meaning of a work is that there is only one meaning, या फिर हम ये भी डिनाई कर सकते हैं कि किसी भी काम का ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता ही नहीं है. डिनाइंग दैट देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्क इसकी सेंस नहीं बनती है क्योंकि श्योरली वर्क्स हैव मीनिंग. कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मीनिंग सिर्फ इंटरप्रेटर्स पोजेस करते हैं, यानी रीडर्स ही एक काम को मतलब देते हैं, मीनिंग देते हैं उसको इंटरप्रेट करके. अगर हम ये व्यू होल्ड करते हैं तो हम इस कंक्लूजन को अवॉइड करते हैं कि देयर इज़ ओनली वन मीनिंग फॉर एनी गिवन सच वर्क. ये रिस्पॉन्स कंसीड करता है कि किसी भी लिटरेरी वर्क का ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं होता है. हेंस एम्स इज़ राइट टू से दैट इफ़ वर्क्स डोंट हैव सिंगल मीनिंग दे हैव नो मीनिंग एट ऑल, ओनली रीडर्स पोजेस मीनिंग. इस व्यू के अगेंस्ट हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि वर्क्स मल्टीपल मीनिंग्स भी पोजेस कर सकते हैं, यानी लिटरेरी वर्क्स हिस्टोरिकली और कल्चरली कंस्टिट्यूट किए जाते हैं और इंटरप्रिटेशन इज़ इटसेल्फ एन एक्ट ऑफ कंस्टिट्यूटिंग अ वर्क, जिसकी वजह से वर्क्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट इम्प्यूटिंग सम प्रॉपर्टीज़ टू दैम. और क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ कल्चरल हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज भी हो रही हैं. हैंस अ वर्क मे पोजेस मल्टीपल मीनिंग्स डिपेंडेंट अपॉन द कल्चर एंड टाइम इन विच दे आर इंटरप्रेटेड. सिंगुलर मीनिंग व्यू का डिफेंडर ये क्लेम कर सकता है कि इवन दो इंटरप्रिटेशन कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड हो सकती है, ये भी पॉसिबल हो सकता है साथ साथ कि एक ट्रू कंक्लूजन रीच किया जाए रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ दैट वर्क जो बेस्ड हो ऑन द ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट वर्क. यहाँ पे ऑथोरियल इंटेंट की बात भी कुछ थियोलॉजियंस और फिलोसोफर्स कर चुके हैं, यानी ऑथर की इंटेंशन पे बेस होना चाहिए एक काम का ऑब्जेक्टिव मीनिंग, और उसको फाइंड आउट करने के लिए यू माइट want to find out the historical context, the background and everything. और ऑथोरियल इंटेंट के बगैर कोई भी ऑब्जेक्टिव मीनिंग डिसर्न नहीं किया जा सकता.